let's discuss physical properties of dihydrogen. Now remember, dihydrogen is colorless, odorless, tasteless gas. इसको ना कोई कलर होता है, ना ऑर्डर होता है, टेस्ट नहीं होता. उसके बाद इट इज कंबस्टिबल, इट इमीडिएटली कैचेस फायर इग्नाइट करने के बाद. उसके बाद इट इज लाइटर देन एयर ऑल्सो. सो पहले हम लोग क्या करते थे, बलून्स उड़ाते थे डाइहाइड्रोजन से, याद रखे. सो it is colorless, odorless, tasteless gas. Then it is combustible and lighter than air, याद रखे. So it is lighter than air and combustible. उसके बाद it is insoluble in water, that is to be remembered. So it is insoluble in water. अब इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की. सो लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन. अब सबसे पहली बात ये याद रखें, हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो काफी हाई होती है. तो इस वजह से डाइहाइड्रोजन नॉर्मली लेस रिएक्टिव होता है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. But under drastic conditions it can be made reactive. So let's see some of the properties of dihydrogen. So सबसे पहली property हम देखेंगे reaction with halogens. अब देखिए, halogens have greater affinity for hydrogen. So hydrogen combines with halogen producing corresponding hydrogen halides. याद रखें. So H2 combines with halogens to form hydrogen halides. देखिए इस चीज को हम कैसे दिखा सकते हैं. सो H2 when comes in contact with X2, बोले तो halogen, leading to the formation of HX. अब यहाँ पे देखिए where X can be फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अब बात अगर फ्लोरीन की हो तो फ्लोरीन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन. सो रिएक्शन इज नीडेड टू बी कैरिड आउट इन डार्क. सो रिएक्शन विथ फ्लोरीन is conducted in dark only. So in dark condition H2 combines with F2, that is fluorine, and that will lead to the formation of HF. ये explosive mixture होता है. Now next property to be discussed is reaction with O2, that is dioxygen. So when in presence of suitable catalyst or at elevated temperature, hydrogen comes in contact with oxygen, lead to the formation of water. और यहाँ पे ये exothermic reaction है. So this can be given in this manner. So H2 gas when comes in contact with O2 gas at a high temperature, or in presence of suitable catalyst, that will lead to the formation of water. This is exothermic reaction. Around minus 285.9 kilojoule per mole of heat is given out during the course of this reaction. Now next property is reaction with nitrogen. So let's see reaction with N2. अब देखिए हाइड्रोजन के रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन पाउडर एज ए कैटलिस्ट, then we can have ammonia, and this is a commercial method to prepare ammonia under the name Haber's method. अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन when treated with nitrogen in presence of catalyst, that is iron powder,
at about 623 Kelvin and 200 atmospheric pressure, we will have ammonia from this, and this reaction is also exothermic, so heat released will be 92.6 kilojoule per mole approximately, and this is known as Haber's method. इसको हम लोग Haber's method या Haber's process कह सकते हैं. Next property to be discussed is reaction with metals. अब देखिए हाइड्रोजन मेटल के साथ अगर कंबाइन हो तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स. याद रखें. सो H2 reacts with metals to form metal hydrides, to form metal hydrides. अब हाइड्राइड्स के बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं डिटेल में. अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलो सोडियम when treated with dihydrogen then we will have sodium hydride. जैसा मेटल वैसा हाइड्राइड हम लोगों को मिलेगा. अब इसके बाद अगला पड़ाव लेट्स सी रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स. अब एक चीज याद रखें, हाइड्रोजन जो है कुछ मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की ताकत रखता है. इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो H2 कैन रिड्यूस some metal ions and metal oxides to deposit metal, यानी मेटल डिपॉजिट कराएगा. अब एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं H2 when comes in contact with Pd2 plus, so thereby reduction takes place, पैलेडियम डिपॉजिट होगा. सो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है. अब इसके बाद हम लोग जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसका भी रिडक्शन हाइड्रोजन कर सकता है. हाइड्रोजन कैन डिपॉजिट जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड एज वेल. कुछ इस तरह से इसे हम शो कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ reducing reactions can be shown. अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हार्डनिंग ऑफ ऑयल. देखिए कमर्शियली हम लोग जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ऑयल इंडस्ट्री में, वहां पे एक डर ये होता है ऑयल्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है ऑयल का और उसकी टेस्ट जो है वो बदल जाती है. टेस्ट becomes unpleasant and offensive to smell. इस प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी. अब रैंसिड जो है ऑयल उसे हम मार्केट में तो ला नहीं सकते, तो उसका अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उससे हमें वनस्पति घी मिलेगा. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज हार्डनिंग ऑफ ऑयल. सो हार्डनिंग ऑफ oil. So oils are the triesters of glycerol with higher unsaturated fatty acids. अब उसका अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ निकेल हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें सेमी सॉलिड वनस्पति घी मिलेगा, और एक्सेस हाइड्रोजन अगर हम पास करते हैं तो ऑयल का कन्वर्शन फैट में भी हो सकता है. सो याद रखें ऑयल्स ऑन हाइड्रोजनेशन, oils on hydrogenation give वनस्पति घी और फैट. अगर हम लोग एक्सेस हाइड्रोजन पास करते तो हमें फैट भी मिल सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसे बता सकते हैं कंसीडर ग्लिसरील ट्राइओलिएट. सो ग्लिसरील ट्राइओलिएट कैन बी गिवन इन दिस मैनर. ये है ऑयल जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस इज ग्लिसरील ट्राइओलिएट. सो दिस इज द ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल with higher unsaturated fatty acid.
अब इसको मान के चलो मैंने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, हीट किया, सो पार्शियल हाइड्रोजनेशन मैं करा रहा हूं, दिस इज ऑयल। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से क्या होगा, वन ऑफ द अनसैचुरेटेड साइट्स गेट सैचुरेटेड, जिसके वजह से मुझे सेमी सॉलिड वनस्पति घी मिलेगा। सो वी विल हैव दिस। अब हमें ये चीज मिलेगा C17H35, उसके बाद CHO C17H33 and then CH2O C17H33 and this is none other than वनस्पति घी। ये वनस्पति घी है। लेकिन अगर हम एक्सेस हाइड्रोजन के साथ इसको ट्रीट करें तो हमें फैट मिलेगा, बट इन contact with excess hydrogen fats are formed। यहां पे हमें फैट्स मिलेगा। अब इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। कंसीडर ग्लिसरील ट्राइओलिएट अगेन। सो दिस इज द ऑयल, जिसे हम केमिकली क्या बोलेंगे, ग्लिसरील ट्राइओलिएट। सो ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ ओलिक एसिड give rise to this technically. So this is glyceryl trioleate. Now we are treating this with excess of hydrogen in presence of nickel. अब क्या होगा, this is oil. So जितने भी unsaturated areas है सबके सब हाइड्रोजनेट होंगे and that would lead to the formation of a solid fat. यहाँ पे हमें मिलेगा glyceryl tristearate. So glyceryl tristearate is fat technically, जिसे कुछ हम लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, this is none other than fat. So it was all about hardening of oil, या फिर आप लोग इसे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल भी बता सकते हैं, याद रखें। Now next property is hydrogenation of unsaturated hydrocarbons. So ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। So hydrogenation of unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस को इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसका अगर हम हाइड्रोजिनेशन कराएं तो दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। ये हमने देखा है। फॉर एग्जांपल कंसीडर प्रोपिलिन। सो प्रोपिलिन व्हेन हाइड्रोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, देन प्रोपिलीन पे यानी डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी हाइड्रोजन की एंड इसका सैचुरेशन होगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। सो सिमिलरली अगर हम अल्काइंस लेते हैं तो अल्काइन के साथ भी यही होगा। नाउ कंसीडर प्रोपाइन, जो प्रोपाइन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो प्रोपाइन अपॉन हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोपिलिन, जिसे हम प्रोपीन कह सकते हैं। सो विच इन टर्न गेट हाइड्रोजिनेटेड फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट और हमें कंप्लीटली सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम कहेंगे प्रोपेन। सो ये जो रिएक्शंस हमने देखा, दीज रिएक्शंस आर सेबेटियर एंड सैंडरसन्स रिएक्शन। लेकिन बट अगर हम वाटर गैस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंसीडर प्रोपिलिन अगेन। सो दिस इज व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर गैस, दैट इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अल्डिहाइड CH3CH2 CH2CHO, दिस इज कॉल्ड ब्यूटीराल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेनल। अब ये जो ब्यूटीराल्डिहाइड हमें मिला है, इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन फर्दर करें, सो वी विल हैव N ब्यूटिल अल्कोहल
जिसे कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, IUPAC नेम इज 1-ब्यूटेनॉल। सो अल्कोहल बनाने का ये एक बेहतरीन तरीका है, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कीन बाय ब्रिंगिंग अबाउट हाइड्रोजिनेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन।